Hello everyone, this is Reena Pandey and you are welcome to Prodigy IAS. Again, I'm here with daily MCQ quiz containing 5 new questions based on current affairs and latest news. So let's move on. Question number 1. One of the following is the fundamental difference between a classical bit and a quantum bit. हमें जानना है कि क्लासिकल बिट और क्वांटम बिट के बीच क्या डिफरेंस है. स्टेटमेंट्स जो हमें दी गई है, ए बिट कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली वेयर इट्स क्यूबिट्स जिन्हें क्वांटम बिट कहते हैं कैन रिप्रेजेंट ओनली वन स्टेट एट अ टाइम. सेकेंड है बिट्स कैन रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू स्टेट्स 0 and 1 वेयर इट्स qubits can represent both 0 and 1 simultaneously. Third, bits are based on quantum mechanics and qubits are based on classical mechanics. And fourth, bits use superposition and entanglement while qubits do not. So depending on these statements, we have to see which is the answer to this question. So first of all, we should know what is bits and quantum bits. Classical bits, जिन्हें से bits कहते हैं, they can be only in one of the two states at a time, either 0 and 1. वो सिर्फ एक स्टेट हो सकती है इसमें से, either they can be 0 or they can be 1, right? They cannot be 0 and 1 simultaneously, right? So they can only be in one state at a time, either 0 or 1. Quantum bits जिन्हें qubits भी कहते हैं, ठीक है, ये they can be in a state of superposition. Superposition means they can represent both 0 and 1 simultaneously until measured. मतलब वो 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है simultaneously जब तक measure ना किया जाए. तो ये difference बहुत बड़ा है between qubits and classical bits which gives quantum computing its power, right? तो अब हम इन सारी statements को देखें. तो पहली statement क्या है? A वो incorrect है क्योंकि classical bits cannot represent multiple states. They represent only one state at a time, either 0 or 1. So this is wrong. Statement B is correct. Statement B क्या थी? Bits can represent one of the two states 0 and 1 whereas qubits can represent both 0 and 1 simultaneously. ये statement बिल्कुल सही है. Statement 3 पे आता है, ये incorrect है क्योंकि both bits and qubits are concept used in computing, right? But qubits जो है वो quantum mechanics पे based है और जो bits हैं वो किस पे based है? हमारे classical operating computing systems पे. Bits are a part of classical computing systems, classical mechanics पे. और statement जो डी है वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि बिट्स डू नॉट यूज सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट. क्यूबिट्स यूज सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट. इट मींस इट कैन बी बोथ 1 and 0 साइमल्टेनियसली. दैट इज द स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? बिट्स ये नहीं कर सकते. तो स्टेटमेंट डी भी इनकरेक्ट है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. एज यू कैन सी, ओनली बी इज करेक्ट, right? Now move towards the second question for the day. Chandrayaan 4. ये क्वेश्चन है चंद्रयान 4 के बारे. इट यूटिलाइजेस 2 लॉन्च व्हीकल्स Mark 3 LMV3 रॉकेट्स एंड परफॉर्म अ सीरीज ऑफ डॉकिंग एंड अनडॉकिंग मैन्यूवर्स टू सक्सेसफुली कलेक्ट एंड रिटर्न ल्यूनर सॉइल सैंपल्स टू अर्थ, राइट? सेकंड स्टेटमेंट जो है, सैंपल डॉकिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्यूल्स बिटवीन द टू स्पेसक्राफ्ट्स व्हेन दे आर इन ऑर्बिट, राइट? तो अब हम देखते हैं क्या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. We should know what is Chandrayaan 4. Chandrayaan 4 is designed as a lunar sample return mission. Chandrayaan 4 को डिजाइन किया गया है so that we can go to the moon and collect lunar soil from there and come back to earth safely. So it has been designed to bring 3 kgs of lunar soil from the surface of moon to the surface of earth, right? So it is a lunar sample return mission. It uses 2 LVM rockets to launch its 5 modules. ठीक है, अब मैं आपको I'll show you a picture. You can see a picture. ये तो इस चंद्रयान 4 की पिक्चर है. इसमें आप इसके सारे मॉड्यूल्स देख सकते हैं. इसके 5 मॉड्यूल्स है. असेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल. असेंडर सबसे ऊपर है, डिसेंडर है, फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड री एंट्री मॉड्यूल एंड ट्रांसफर मॉड्यूल. ये इसके 5 मॉड्यूल्स होते हैं, राइट? द मिशन इन्वॉल्व्स डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन ल्यूनर ऑर्बिट टू ट्रांसफर कलेक्टेड सैंपल्स टू द री एंट्री मॉड्यूल फॉर देयर सेफ रिटर्न टू अर्थ. इस मिशन में क्या होता है? डॉकिंग एंड अनडॉकिंग. सबसे पहले तो स्पेस डॉकिंग क्या होता है? स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या होता है? जब हम 2 स्पेस क्राफ्ट्स को ऑर्बिट में कनेक्ट करते हैं सो दैट हम वी कैन यूज इट एज अ सिंगल यूनिट फॉर द पर्पसेस लाइक क्रू ट्रांसफर, कार्गो एक्सचेंज और एनी मिशन ऑपरेशंस के लिए जब हम 2 स्पेस क्राफ्ट्स को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं इन ऑर्बिट, देन दैट इज कॉल्ड स्पेस डॉकिंग. और अनडॉकिंग मीन्स हम उनको डिटैच करते हैं. तो इस मिशन में डॉकिंग और अनडॉकिंग होगा इन ल्यूनर ऑर्बिट टू ट्रांसफर कलेक्टेड सैंपल्स टू द री एंट्री मॉड्यूल फॉर देयर सेफ रिटर्न टू अर्थ, सो दैट जो भी हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, ल्यूनर सॉइल के जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, उसे इस री एंट्री मॉड्यूल में लेके आया जा सके, राइट? सो दैट दे कैन बी सेफली रिटर्न टू द अर्थ. Okay, so according to these statements we have seen the answer to this question is A. A means only one statement is correct. Statement number 1. Second is incorrect. Now we'll move to the third question.
विद रेफरेंस टू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, आपने समय सुना ही होगा, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इट एनेबल्स सीमलेस रियल टाइम पेयर टू पेयर एंड पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स। सेकंड है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड यूपीआई सिस्टम इन इंडिया। थर्ड है वन टाइम पासवर्ड इज सेंट वायर एसएमएस एज द प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शंस। और थर्ड है वीपीए इन यूपीआई रिप्लेसेस द रिक्वायरमेंट फॉर अ यूपीआई पिन। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज यूपीआई, राइट। यूपीआई हमें क्या करता है? यूपीआई अलाउज इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट्स फॉर बोथ पेयर टू पेयर एंड पेयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब क्या है? पेयर टू पेयर का मतलब है यूपीआई के थ्रू हम रियल टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं मनी का फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट टू अनदर पर्सन बैंक अकाउंट। This is called P2P, peer to peer, and person to merchant मतलब from one person's bank account to another merchants, another retailers, another shop's current account we can transfer the money instantly, right? तो ये दोनों real time payments को allow करता है, make it very feasible, and as we can see from the data in India today, around 48% of the UPI payments all over the world has been done in India, so it has been widely accepted in India, right? It was developed by NPCI under the guidance of RBI and it was launched in 2016। तो स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब वाइल ओटीपी इज यूज्ड ड्यूरिंग इनिशियल रजिस्ट्रेशन और लिंकिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ओटीपी जब भी हम इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तब ओनली एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली ओटीपी इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो सिर्फ वो हमसे क्या पूछता है? एक यूपीआई पिन पूछता है, राइट? बार बार ओटीपी नहीं आता, ओटीपी इज ओनली आस्क्ड ड्यूरिंग द इनिशियल रजिस्ट्रेशन और लिंकिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, राइट? अब व्हाट इज वीपीए? वीपीए क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर होता है विच इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मनी विदाउट शेयरिंग बैंक डिटेल्स। एक पर्सन दूसरे पर्सन के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकता है विदाउट नोइंग इट्स बैंक डिटेल्स, विच इज वेरी सिक्योर, एंड दैट इज व्हाई वीपीए इज बीइंग जनरेटेड एंड इट डज नॉट रिप्लेस द यूपीआई पिन, नॉट एट ऑल, राइट? यूपीआई पिन किस लिए जरूरी होता है? फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन वी आर डूइंग। सो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। एज यू कैन सी, B मतलब only two statements are correct. First is correct and second is correct. Third and fourth are completely incorrect. Right? Now, let's move to the fourth question. Consider the following statement regarding the current account deficit. It refers current account deficit क्या होता है? CAD. It refers to the shortfall in the government tax revenues compared to its expenditures. Second statement क्या है? Persistent high CAD can lead to increase in domestic manufacturing competitiveness. First of all, we should know what is CAD. CAD refers to the shortfall in a country's current account. किसी भी country के current account में जो shortfall होता है उसे CAD कहते हैं, ठीक है? करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट? कैड कब होता है? जब किसी भी कंपनी के जो इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट्स, उसके इंपोर्ट्स से ज्यादा हो जाए, राइट? यानी कि जितना आपने खरीदा है दूसरी कंट्रीज से वो ज्यादा हो जितना आपने बेचा है, तो डेफिनेटली द अकाउंट विल गो इन माइनस, सो दैट इज कॉल्ड कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट? सो ये एक शॉर्टफॉल होता है कंट्रीज के करंट अकाउंट में। अब अ हाई कैड कैन इंडिकेट दैट अ कंट्री इज हेवीली रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स। डेफिनेटली अगर कैड हाई है तो इसका मतलब कंट्री के इंपोर्ट्स ज्यादा है, राइट? तभी तो कैट का जो हाईलाइटर है वो ज़्यादा होगा, जिससे हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज़ को हार्म होगा, क्योंकि जितना इंपोर्ट होगा उतने वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे और डोमेस्टिक कंट्रीज़ के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, राइट? इसके इट विल लीड टू करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी का डिप्रिसिएशन होगा, राइट? क्योंकि ज़्यादा करेंसी तो बाहर जा रही है ना, राइट? और इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सटर्नल डेट होगा, हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट लेंगे तो डेट भी होगा, और वनरेबिलिटी टू ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक्स होगा। जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसके लिए हमारा मार्केट वनरेबल हो जाएगा, और जिससे हमारे इंटरनली जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है हमारी शेक होगी और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, राइट? बिकॉज उनको क्या है? मार्केट को अचीव करना है, मार्केट में अपने आप को ज़्यादा सेल करना है। तो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर डी। इट मीन्स डी मीन्स नीदर वन और टू, ठीक है? द फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है ना, सेकंड स्टेटमेंट राइट है, राइट? सो थैंक यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Consider the following statement. The main function of the mitochondria is DNA replication. पहली statement ये है. Second, mitochondria is inherited only from the mother's egg. Second statement ये है. Third, a gene is a segment of DNA that provides the instructions for making proteins. अब हम देखते हैं कि इन statements के बारे हम ये जानेंगे और then we will see which of the statements are correct. Now, mitochondria क्या होता है? Mitochondria जो होता है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे कहते हैं एटीपी, ठीक है? थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब भी हमारी बॉडी
ब्रीथ करती है और एनी लिविंग बॉडी ब्रीथ, राइट? तो ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी में, तब हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज सेल्स रिक्वायर मोर एनर्जी व्हेन दे ग्रो, डिवाइड और रिपेयर। जब भी सेल्स ग्रो करते हैं, कोई लिविंग बॉडी ग्रो करती है, या सेल्स बढ़ते हैं, डिवाइड होते हैं, या सेल्स रिपेयर होते हैं, देन दे नीड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी is being supplied by mitochondria only, which it does through cellular respiration by producing ATP. So mitochondria को power house of the cell भी कहा जाता है, right? And it is important for cellular functions. So statement 1 is incorrect. Statement 2 and 3 are correct. How? Mitochondria are maternally inherited. It means जैसे ही fertilization होता है, जो sperm mitochondria है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो एग है, एग को सिर्फ मेटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर एग्स आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, राइट? इसका मतलब जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, व्हेनेवर द एग्स मीट्स द स्पर्म, राइट, सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इनटू दैट प्रोसेस, और जो मदर के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मदर्स के एग के, वो ही ऑफस्प्रिंग को, वो ही जो आने वाले बेबीज हैं उनको पास्ड ऑन होता है, राइट? और अब जीन क्या होता है? जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए का, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं हाउ टू प्रोसेस, हाउ टू सिंथेसाइज दी प्रोटीन्स, राइट? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. It means 2 and 3 are correct. The first is not correct because the main function of mitochondria is production of energy, not DNA replication. So thank you for the day. Stay tuned for more updates at the rate of Prodigy.